ਵੈਲਕਮ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 8th ਕਲਾਸ ਦਾ 8th ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼, ਉਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੁਝ ਟਰਮਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 8.2 ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਭ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਐਸਪੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਵੇ ਵੱਡੀ ਤੇ ਸੀਪੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਹੋਵੇ ਛੋਟਾ। ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਵੱਡਾ, ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਛੋਟਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਸਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਪੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਭ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲਾਭ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਮਾਈਨਸ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਭ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਭ ਬਟੇ ਸੀਪੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਣਾ 100 ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਸ ਦੀ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਵੱਡਾ ਹੋਏ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੀਪੀ ਮੀਨਸ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚੀ ਉਸ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਪੀ ਮਾਈਨਸ ਐਸਪੀ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਮਾਈਨਸ ਵੇਚ ਮੁੱਲ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਨੀ। ਸੋ ਹਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਸ ਪਰਸੈਂਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੋਸ ਓਵਰ ਸੀਪੀ ਮੀਨਸ ਹਾਨੀ ਬਟੇ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਗੁਣਾ 100। ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਸ ਪਰਸੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸੀਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਨੀਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਨੋਂ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸੀਪੀ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਨੀਚੇ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੀ ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਪਰਸੈਂਟ ਦੀ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ। ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣ ਜਾਈਏ, ਰੈਡੀਮੇਡ ਸੂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਗਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੇਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੇਟ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੇਟ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰਕਡ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਮਾਰਕਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਿਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅੰਕਿਤ ਮੁੱਲ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਟ ਦਾ ਅੰਕਿਤ ਮੁੱਲ ਹੈ ਸੇ 500 ਰੁਪਏ, ਇਹ ਹੈ ਉਸਦੀ ਮਾਰਕਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਕਿਤ ਮੁੱਲ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੋਲ ਭਾਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੌਪਕੀਪਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸਦਾ ਰੇਟ 450 ਰੁਪਏ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 450 ਰੁਪਏ ਉਸਦਾ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਸਪੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 450, ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹ ਵੇਚਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਐਮਪੀ ਤੇ ਐਸਪੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਰਕਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਅੰਕਿਤ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਸਕਾਊਂਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਟੌਤੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਟੌਤੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਟੌਤੀ ਦਾ? ਕਟੌਤੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? ਮਾਰਕਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸਪੀ ਯਾਨੀ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮਾਰਕਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਾਈਨਸ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਸ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਵੇਚੀ। ਸੋ ਅੰਕਿਤ ਮੁੱਲ
माइनस वेच मुल। हुण अगे गल करते हैं, कटौती तो आपां नूं मिल गई आ फार्मूले तो, कटौती प्रतिशत किवें कढदे आं आपां, डिस्काउंट परसेंट यानी कि कटौती प्रतिशत। ते ये डिस्काउंट लगे अपना किस ते, अंकित मुल यानी कि MP ते, सो नीचे आएगा अपने कोल अंकित मुल यानी कि मार्क्ड प्राइस, ते ऊपर आ जाएगा डिस्काउंट, गुणा आ जाएगा 100। सो जदों भी डिस्काउंट परसेंटेज निकालांगे, डिस्काउंट जिन्नी कटौती हुई या आपां लई कटौती बटे अंकित मुल जिन्ना उसका अंकित मुल सी चीज़ का या मार्क्ड प्राइस सी, गुणा करनी है आपां 100 दे नाल। हमेशा परसेंटेज के फॉर्मूलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਦੇ ਨਾਲ गुणा जरूर करनी है। उत्थे भी देखिया तुसी इस फॉर्मूले 'ਚ भी आया सी, इस फॉर्मूले ਦੇ ਵਿੱਚ भी अपने कोल आया सी। ये अगे आने आपां रेट ऑफ इनक्रीज या डिक्रीज ते किसी राशि दे या किसी क्वांटिटी दे वधण ते घटण दी दर या प्रतिशत आपां ओह किवें निकालदे हां, उस दे बारे गल करदे हां। हुण अपने कोल आ गई चौथी टर्म, रेट ऑफ इनक्रीज यानी कि वधण दी दर या प्रतिशत कह सकते हैं आपां। ओके, किवें निकालदे हां, पहला इहदे बारे डिस्कस करदे हां कि इह हुंदी की चीज़ है। सुपोज चीनी का रेट सी अज तो 1 महीना पहला 40 रुपए पहला, ते अज ओह यानी कि 1 महीने बाद वो रेट हो गया वध के 45 रुपए, जो हुण दा रेट है। तो आ जिहड़ा वाधा होया 40 तो 45 का, यह 40 तो 45 हो गया यानी 5 रुपए वध गया। ये वाधा किन्ने परसेंट है, इनू ही आपां रेट ऑफ इनक्रीज बोलते हैं। तो यह कैलकुलेट किवें करते हैं आपां, पहला तो डिफरेंस यानी कि वाधा आ जाएगा अपने कोल, इनू बोलते हैं आपां इनक्रीज किन्ना होया। सो इसदे लई फार्मूला हुंदा है इनक्रीज ओवर ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। इनक्रीज कितना होया इस केस दे विच 5 रुपए का, ओरिजिनल वैल्यू यानी कि जिथों पहला चलिया सी यह रेट, पहला 40 सी तो नीचे आएगा 40 इंटू 100। इनू सोल्व कर लांगे तो अपने को 0 0 के नाल कट्टी जाएगी, 2 के टेबल च इत्थे 2 4 कट्टिया जाएगा, इत्थे यह 5 के टेबल च कट्टिया जाएगा। सो बन जाएगा 25/2 यानी कि 12.5% आ जाएगा वाधा। इसी तरह जेकर आपां रेट ऑफ डिक्रीज पता करना होए, जिवें इहदे विच किन्नी वैल्यू वधी सी, किन्ना फर्क पिया सी, उत्थे किन्ना फर्क पएगा, वो उपर आ जाएगा जिन्नी घट गई ओवर ओरिजिनल वैल्यू, जिस वैल्यू तो वो घटी है वो नीचे इंटू 100 करके, इनू भी सोल्व करके इसी तरह आपां रेट ऑफ डिक्रीज भी निकाल सकते हैं। अगे गल करते हैं आपां सेल्स टैक्स या फिर वैट दी। सेल्स टैक्स की हुंदा है, जदों कोई चीज़ आपां मार्केट दे विचों परचेज करते हैं तो जिन्ना उसका मुल हुंदा है उहदे विच आपां नूं कुछ एक्सट्रा उहदे नाल पे करना पैंदा है। वो जिहड़ा एक्सट्रा हुंदा है वो 5% 10% कुछ हो सकता है उस चीज़ की कीमत का। सुपोज जिहड़ी चीज़ है वो है 50 रुपए की, ते उहदे उत्ते 5% जिहड़ा है सेल्स टैक्स लग रहा है जो कि गवर्नमेंट नूं जांदा हुंदा है। सो आपां जदों चीज़ खरीदांगे तो 50 रुपए दे नाल 50 रुपए का 5% होर फालतू देंगे शॉपकीपर नूं, शॉपकीपर अगों वो गवर्नमेंट नूं पे कर दिंदा है। सो 50 का 5% निकालांगे तो अपने कोल आ जाएगा 2.5 रुपए एक्सट्रा आपां नाल पे करांगे। इट मीनस आपां 50 रुपए ना दे के 52.5 रुपए देंगे शॉपकीपर नूं, जिहदे विचों 2.5 रुपए यानी कि 2.5 रुपए यह गवर्नमेंट नूं चल जाएगा टैक्स की फॉर्म दे विच। इनू ही बोलते हैं आपां सेल्स टैक्स। ते अजकल इस टैक्स की जगह GST ने ले ली है, तो उत्थों भी जिहड़ा टैक्स हुंदा है वो गवर्नमेंट नूं जांदा है। सो स्टूडेंट्स इन्हां सारे फॉर्मूलिਆਂ तो बाद हुण आपां सोल्व करते हैं एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चनस नूं। आने एक्सरसाइज 8.2 दे फर्स्ट क्वेश्चन ते जो कि है अ मैन गोट अ 10% इनक्रीज इन द सैलरी। किसी आदमी की सैलरी 10% नाल वध गई। इफ न्यू सैलरी इज नवी वधी हुई जिहड़ी सैलरी है वो इन्नी है, तो फाइंड द ओरिजिनल सैलरी आपां पता करनी है।
सो सोल्यूशन देखते हाँ। लेट ओरिजिनल सैलरी यानी कि पहला वाली जिहड़ी उहदी सैलरी सी ओह आपां मान लांगे ₹X। मान लो पहला तनख्वाह बराबर ₹X। इंक्रीज परसेंट इज इक्वल टू 10%, यानी कि प्रतिशत वाधा। सामने यही चीज़ लिखी जाएगी 10%। नवी सैलरी न्यू सैलरी 1,54,000 नवी तनख्वाह। सो ये सामने ये लिखा जाएगा। हुण आपां की देखते हैं, आ पहलां वाली सैलरी है, ये इसी सैलरी का 10% जुड़ेगा ਤਾਂ दोनों मिल के नवी सैलरी के बराबर आ जाणगियां अपने कोल। सो आपां आही चीज़ हुण इत्थे करन लगे हाँ। अकॉर्डिंग टू गिवन यानी कि दिते अनुसार X पहलां वाली सैलरी उहदे विच X दा 10% जोड़ांगे ਤਾਂ सैलरी ते इनक्रीज दोनों मिल के नवी सैलरी बना देणगे जो कि होएगी 1,54,000। तो इत्थे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट लिखणगे X का 100% की जगह पर 10% ऑफ X। मैं ब्रैकेट च लिख दिता। सो इस तो बाद X प्लस X दा की जगह पर गुणा 10/100 इज इक्वल टू 1,54,000। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए आह जड़ा 10/100 है ये X तो अगे लिखा जाएगा, बस इन्ना का फर्क है। फिर आ 0 नाल 0 कैंसल होएगी, अपने को आ जाएगा X प्लस X बटे 10 बराबर 1,54,000। हुण आपां इनू सिंपलीफाई कर लेंगे हैं। इस साइड ते अपने को आ जाएगा 10x प्लस 1x/10। जो आप ये नीचे 1 लगा के बटरफ्लाई मैथड यूज़ करांगे, आ x 10 नाल मल्टीप्लाई होएगा 10x, आ x 1 नाल मल्टीप्लाई होएगा 1x। नीचे इन्हां दी 1 ते 10 की आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी 10, तो सामने है 1,54,000। सो ये बन जाएगा 10 ते 1 11x बटे 10 बराबर 1,54,000। हुण इधर यह 11 बटे 10 है, उधर जाके उल्ट जाएगा 1,54,000 इंटू 10/11। हुण आपां इहदी कटिंग करते हैं। 11 के टेबल च इसकी कटिंग देखते हैं, हो रही है 11 1 ज़ार 11, फिर 4 44 4 ते जाएगा, फिर आ 3 zeros तो x आ गया अपने कोल 1,4,3 zeros ये तो 1 0 ये। सो 1,40,000 रुपीज़ ये उसकी पहला वाली सैलरी सी, क्योंकि पहला वाली सैलरी X मनी सी तो X की आ वैल्यू आ गई। सो ओरिजिनल सैलरी इज इक्वल टू 1,40,000। ये अपने को आंसर बन जाएगा। पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट लिख सकते हैं, इसलिए पहला तनख्वाह बराबर 1,40,000। आने सैकेंड क्वेश्चन ते ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू जू। किसे चिड़ियाघर दे विच 845 लोग गए ऐतवार दे दिन। ऑन मंडे सोमवार नू ओनली 169 पीपल वेंट। सोमवार नू सिर्फ 169 लोग गए, क्योंकि संडे नू छुट्टी हुंदी है, तो ओबवियसली छुट्टी वाले दिन ज़्यादा लोग जाणगे, मंडे नू छुट्टी नहीं हुंदी। सो थोड़े जे लोग फ्री सी उही गए देखण। वट इज़ परसेंट डिक्रीज, तो जी ये कमी आई है 845 तो 169, इसका प्रतिशत की सी वो आपां पता करना है। सो देखते हैं सोल्यूशन। पहला लिखांगे नंबर ऑफ पीपल वेंट ऑन संडे। ऑन संडे इज इक्वल्स टू 845। फिर नंबर ऑफ पीपल वेंट टू जू ऑन मंडे 169। फिर इत्थे लिखांगे डिक्रीज यानी कि कमी। पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट इहदी जगह ते लिखणगे
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ चिड़िया घर गए। फिर इत्थे आ जाएगा सोमवार नूं जिन्ने लोग चिड़िया घर गए इन्ने, तो डिक्रीज की जगह ते आ जाएगा कमी। इन्हां दा डिफरेंस लैंदे आ, घटाने आ। 15 चों 9 गए 6, इत्थे रह जाणगे 3, फिर इत्थे बन जाएगा 13, 13 चों 6 गए 7 आ जाएगा, इत्थे रह जाएगा अपने कोल 7, 7 चों 1 कढ़ के 6। सो 676 लोग घट गए। हुण आपां इसका प्रतिशत पता करना है, डिक्रीज परसेंट यानी कि प्रतिशत कमी। सो इस दे लई आपां फार्मूला कीता सी रेट ऑफ इनक्रीज या डिक्रीज दे लई। सो जिन्ना डिक्रीज होया ओवर ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100 यानी कि कमी बटे पहला गिणती। सो कमी बटे पहला गिणती गुणा 100। सो कमी कितनी आई 676 दी, पहला गिणती कितनी सी संडे नू 845 इंटू 100। सो यदि हुण आपां करनी है कटिंग इसकी 13 के टेबल फिर आप करांगे कटिंग। 13 के टेबल इसकी जो कटिंग करांगे तो आएगा अपने को 13 6 78, 78 बाद 6 65, 13 5 65। इसनों 13 ते कैंसल करांगे तो 13 5 65, फिर 2 26, 13 दूना 26। फिर 13 के टेबल कटिंग होएगी 13 5 65, 13 चौके 52। फिर 5 के टेबल इस 100 की कटिंग कर देंगे 20, तो 20 इंटू 4 करके आ जाएगा अपने कोल 80। सो 80% इसका बन जाएगा आंसर। आने थर्ड क्वेश्चन ते अ शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स। एक दुकानदार 80 वस्तुआं खरीददा है फॉर ₹2400 2400 दियां एंड सैल्स फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 16%, 16% के लाभ ते उन्हां नूं वेचदा है। वो फाइंड सैलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, एक वस्तु का वेच मुल आपां पता करना है। सो इसका सल्यूशन देखते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स है 2400, सीपी ऑफ 80 आर्टिकल्स इक्वल्स टू ₹2400 यानी कि 80 वस्तुआं दा खरीद मुल बराबर 2400 रुपये। कटते हैं एक वस्तु का खरीद मुल, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल यानी कि एक वस्तु का खरीद मुल। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਹੈ 2400 ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਰਟੀਕਲਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਆ ਇੱਥੇ 0 ਨਾਲ 0 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 30 ਰੁਪਏ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦਾ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੀਪੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟ ਹੈ 16%, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਸਪੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟ इज इक्वल्स टू 16% यानी कि लाभ प्रतिशत बराबर 16%। सो वेच मुल यानी कि एस पी वो आएगा जिन्नी सी पी है प्लस 16% ऑफ सी पी। पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट लिखणगे खरीद मुल प्लस खरीद मुल दा 16%। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 16% ਹੈ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ 'ਚ ਹੀ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ SP ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ CP ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਜੋ ਕਿ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 30 ਰੁਪਏ ਪਲੱਸ ਉਹਦਾ 16% ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ 16/100 ਗੁਣਾ 30। ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ 30 ਗੁਣਾ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਣਗੇ 16/100 ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੋਲਵ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ 30 ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ 30 ਗੁਣਾ 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 30 ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 1 ਪਲੱਸ ਆਹ 16/100 ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ
क्योंकि उत्थों भी 30 बाहर चला गया। सो ये फर्दर आ जाएगा 30। इत्थे आपां बटरफ्लाई मैथड लगा सकते हैं, 1 गुणा 100 करके 100 प्लस आ 16 की 1 दे नाल गुणा 16 बटे इन्हां दी आपस च गुणा 100 तां ये बन गया 30 गुणा 116 बटे 100। आ 0 इत्थे कैंसल हो गई। इस तो बाद आपां इन्हां दोनों नूं गुणा कर लांगे, ये बन जाएगा 348 बटे 10 यानी 34.8 रुपीज़। सो यह 34.8 रुपये या 34 रुपये 80 पैसे नूं आपां कह सकते हैं। इन्ना आ गया अपने कोल वेच मुल या SP ऑफ 1 आर्टिकल यानी कि एक वस्तु का वेच मुल। आने फोर्थ क्वेश्चन ते कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज खरीद मुल किसी वस्तु का कहा होया आपां नूं 15,500 रुपये। 450 रुपये वर स्पेंट ऑन रिपेयर्स, उसकी मुरम्मत ते खर्चा आया इन्ना 450 रुपये का। इफ इट इज़ सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 15%, 15% के लाभ तो उन्होंने बेचा गया तो सैलिंग प्राइस आपां पता करनी है। ये थोड़ा जिहा डिफरेंस ये है कि आ जिहड़ा रिपेयर का खर्चा ये एक्सट्रा चीज़ है। सो देखते हैं ये आपां कित्थे ऐड करांगे। सो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। CP यानी कि खरीद मुल है अपने कोल ₹15,500। मुरम्मत ते खर्च यानी कि मनी स्पेंट ऑन रिपेयर्स वो है ₹450। सो इन्हां दोनों नूं मिला के अपने कोल कुल खरीद मुल आ जाएगा। वो निकालांगे टोटल CP यानी कि कुल खरीद मुल। आह ही जिहड़ा खरीद मुल है यही असली खरीद मुल हुण गिणिया जाएगा, जिहदे उत्ते आपां बाद दे विच सोल्व करके SP निकालांगे। सो यह हो जाएगा इन्हां दोनों का जोड़। अपने को आ जाएगा ₹15,500 प्लस ₹450 जो कि आ जाएगा ₹15,950। ये आ गया अपने कोल CP यानी कि खरीद मुल। तो फिर है अपने कोल प्रॉफिट परसेंट है 15% यानी कि लाभ प्रतिशत। सो सामने यही लिखा जाएगा। हुण आपां निकालते हैं वेच मुल यानी कि SP जो कि हो जाएगा इस दे विच इसदा ही 15% जोड़िया जाएगा। 15,950 दे विच 15/100 गुणा 15,950। सो CP दे विच CP का 15% आपां जोड़न लगे हाँ, जिवें इत्थे कीता सी वो फॉर्मूला तुसीं इत्थे लिख सकते हो। सो दोनों चों इनू गुणा 1 लिख के 15,950 आपां बाहर कढ़ सकते हैं। तो अंदर आ जाएगा अपने कोल 1 + 15/100। फर्दर इनू लिख सकते हैं 15,950 गुणा इत्थे बटरफ्लाई मैथड के थ्रू 100 प्लस आ 15 1 नाल गुणा हो जाएगा 15 ही आ जाएगा बटे इन्हां दोनों की आपस च गुणा 100 आ जाएगा नीचे। सो इनू फर्दर लिखा जा सकता है 15,950 गुणा इन्हां दोनों का जोड़ 115 बटे 100। 1 0 कैंसल हो गई। इस तो बाद इन्हां दोनों को मल्टीप्लाई करके 10 नाल डिवाइड करांगे। 1595115 करते हैं मल्टीप्लाई। 25 5 2 45 47 4 25 एंड 4 आर 29 2 5 2 7। फिर इत्थे 5951 फिर 2 क्रॉस 5951 5 2 1 9 9 18 5 23 124 2 कैरी करेंगे 7 5 12 12 13 14 14 ते 9 23 2 5 ते 2 7 1 8। सो 183425 183425 नीचे है 10। ये करके अपने को पिछों एक छड़ के पॉइंट लग जाएगा 18342.5 पीछे 0 भी लगा सकते हो। सो इन्ने रुपए अपने को आ जाएगी SP यानी कि वेच मुल।
ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਫਰੈਂਡਸ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਥੈਂਕਸ।